Hello student. So now the next topic is scikit-learn. sklearn is also known as. So scikit-learn library. It is a Python toolkit and this is the official website of the scikit-learn.org. So basically this is a machine learning in Python. Means in Python language if we want to perform the machine learning task, then this package this package will help us because so many functionalities available in this package. So many methods of the machine learning like classification. तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई विच कैटेगरी एंड ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू, स्पैम डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्निशन, एसवीएम, नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट, बहुत सारी एल्गोरिथम्स जो है वो क्लासिफिकेशन में आती है। वो सारा काम हम साइकिट लर्न में फंक्शन से कर सकते हैं। regression, predicting a continuous valued attributes associated with an object, जैसे ड्रग रिस्पॉन्स, स्टॉक प्राइस या हाउस प्राइस डिटेक्शन। तो ये सारे काम एस वी एम, एस वी आर, नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब एल्गोरिथम से जो हम रिग्रेशन में कर सकते हैं। या अगर हम क्लस्टरिंग की बात करें तो automatic grouping of similar objects into sets is known as clustering। तो cluster segmentation, grouping, experiment outcome, इसमें भी जो k मीन्स एल्गोरिथम, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, मीन शिफ्ट, ये सारी मेथड्स इसमें अवेलेबल है। So this is very important package for machine learning. So today I am just introducing you scikit-learn. Later on, if we will discuss about the machine learning, then again we revise this topic because this is the for the implementation purpose. So scikit-learn or sklearn is the most useful and robust library for machine learning in Python. तो अगर हमें machine learning करना है Python में तो हमें ये scikit-learn help करेगा। ये it provides a selection of efficient tools for machine learning and statistical modeling, including classification, regression, clustering, and dimensionality reduction via consistent interface in Python. And this library, which is largely written in Python, is built upon NumPy, SciPy, and Matplotlib. उन सब उसमें आ जाएगा। Origin of scikit-learn. It was originally called scikit.learn and was initially developed by David as a Google Summer of Code project in 2007. Later in 2010, Fabian, Gael, Alex Comfort, Vincent, this is French Institute for Research in Computer Science and Automation, took this project at another level and made the first public release on 1st Feb 2010. तो ये यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। तो ये दीज आर द डिफरेंट वर्जन्स अप टू लेटेस्ट वर्जन इज व्हाट scikit.23.0, दिस इज May 20 वर्जन। तो अब नाउ कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूटर। तो sklearn is a community effort since anyone can contribute to it. This project is hosted on this GitHub site। ये इसकी साइट है जहाँ पर ये है। इसकी पूरी कोडिंग भी आप देख सकते हैं। सोर्स कोड इज बिकॉज दिस इज द ओपन सोर्स एंड यू कैन कंट्रीब्यूट ऑल्सो। तो ये फॉलोइंग पीपल्स आर इन्वॉल्विंग लाइक डेटा साइंटिस्ट है इसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मशीन लर्निंग रिसर्चर्स, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स। these are so many researchers are contributing their knowledge to this scikit-learn. Prerequisite is what Python चाहिए इसमें, numpy, scipy, matplotlib, pandas. So how to install it? Pip command is there, pip install scikit-learn या conda install कर सकते हैं हम। And then what are the features? So rather than focusing on loading, manipulating and summarizing data, scikit-learn library is focused on modeling the data. तो some of the most popular groups of models कौन कौन से? Number one, supervised learning algorithm. So almost all the popular supervised learning algorithms like linear regression, support vector machine, decision tree are the part of scikit-learn. सब इसमें implemented है। Unsupervised learning algorithms, on the other hand, it also has all the popular unsupervised learning algorithms from clustering, factor analysis, PCA, ये सब इसमें है। Clustering, this model is used for grouping unlabeled data. Dimensionality reduction, it is used for reducing the number of attributes in data. Sometimes क्या है, suppose we have collected the large amount of data and so many parameters is there. So we can summarize, visualize and feature selection is there. This is dimensionality reduction.
ensembler methods, feature extraction, feature selection. So this is the open source library. Now data set loading, a collection of data is called data set. यहाँ पर जो हम data use करेंगे इसको हम बोलते हैं data set. So it is having the following two component. पहला तो होगा इसमें features. The variable of data are called its features. जैसे उसका रोल नंबर, नाम, ये सब वेरी फीचर्स में। जैसे कार है तो कार में पहिए कितने हैं, कार का कलर कौन सा है, कार में क्या स्टीयरिंग है, कार का डिजाइन कैसा है, कार की विड्थ कितनी है, कार की हाइट कितनी है। तो इस तरह हम उसके फीचर्स, तो फीचर का एक मैट्रिक्स बनता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ फीचर्स इन केस देयर आर मोर देन वन। और फिर फीचर का नाम, लिस्ट ऑफ द नेम। रिस्पॉन्स, नाउ इट इज द आउटपुट वेरिएबल दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फीचर वेरिएबल। मान लो अगर ये फीचर हम बताते हैं तो ये कार है, या ये ट्रक है, या बस है, या ये स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, या इसके इतने डिवीजन है, या ये कैटेगरी है। तो दिस इज व्हाट रिस्पॉन्स फैक्टर, और उसी को हम बोलते हैं टारगेट नेम। तो साइकिट लर्न में ये सारे फीचर्स यूज होते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से देखें कि ये दिस इज दी आइरिस डेटा। ठीक है, तो आइरिस डेटा को हम यहाँ पर, आइरिस जो है वो फ्लावर स्पेसिस के लिए वर्सोवा सेटोसा। तो ये फ्लावर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, लाइक सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, इनके बेसिस पर हम उसके स्पेसिस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो इफ वी पुट एक्स में हमने आइरिस डेटा दे दिया, आइरिस टारगेट इज वाई, फीचर नेम हम उसका पता करना चाह रहे हैं, और उसका टारगेट का नाम, फीचर नेम को प्रिंट करा दें, टारगेट को प्रिंट करा दें, और पहली 10 रो को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो देखें क्या रिजल्ट मिलता है हमें आफ्टर दिस वन, ये। तो फीचर नेम क्या है देखें। तो यहाँ पर जो हमने आइरिस डेटा लिया उसमें सेपल लेंथ है जो सेंटीमीटर में है, सेपल विड्थ है अगेन सेंटीमीटर, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, और टारगेट जो है वो ये है, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका, ये 3 कैटेगरी है। तो और ये पहली 10 रो में ये है 5.1 सेपल लेंथ है, 3.5 सेपल विड्थ, 1.4 पेटल लेंथ, 0.2 पेटल विड्थ। तो अब इस डेटा को हमें स्टडी करना है, और इसके बेसिस पे हमें ये इसका जो टारगेट है वो पता करना है। तो दिस इज अवर मशीन लर्निंग का। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द डेटा सेट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल, वी कैन स्प्लिट द डेटा सेट इनटू टू पीसेस, वन इज ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। मान लो आपको 100 स्टूडेंट का डेटा एनालिसिस करने को आया, तो पूरे 100 पे हम काम नहीं करेंगे, हम उसको 30 70 सपोज 70 स्टूडेंट का डेटा लिया, और उनके रिजल्ट भी ले लिए हमने, और अब हमने एक मॉडल बनाया कि जो बच्चा यूनिट टेस्ट में उसकी अटेंडेंस इतनी है और इसके बेसिस पे वो पास होता है, तो उनके बेसिस पे हमने एक प्रोग्राम बना दिया। अब जो रिमेनिंग 30 डेटा बचा हुआ था उनके हमने रिजल्ट छुपा दिए। ठीक है, नाउ देयर इज 30 डेटा पास, 30% डेटा पास इनटू दैट मॉडल, और फिर ये मॉडल बताएगा कि उनका रिजल्ट क्या होगा। अब वो जो रिजल्ट आया वो, और जो ओरिजिनल रिजल्ट है, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करके उसकी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। सो दिस इज अवर मशीन लर्निंग मॉडल। तो यहाँ पर भी देखिए हम करके देखते हैं, ये हमने लोड आइरिस किया, आइरिस डेटा करा, टारगेट किया, और यहाँ पर हमने ट्रेन स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट करने में हमने कंडीशन लगाई 30-70-30% की, और फिर उसका शेप देखा। तो यहाँ पर देखिए टोटल 150, अगर मान लो 150 रिकॉर्ड्स थे, तो आउट ऑफ 150 105 जो है वो 70% एंड 45 इज व्हाट 30%। तो इस तरह हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो दिस इज 150 रो, तो 150 इंटू 30 इज व्हाट 45। नाउ आफ्टर दैट वी ट्रेन द मॉडल। तो यहाँ पर हम एक मशीन लर्निंग मेथड के नियरेस्ट नेबर्स, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हम इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि ये उसके कलर को, मतलब स्पेसिस को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो यहाँ लोड आइरिस किया हमने, आइरिस डॉट डेटा, आइरिस टारगेट, एसकेएलएन मॉडल हमने किया, स्प्लिट अगेन हियर 0.4 में 60-40 लिया। देन वी इंपोर्ट दिस के नेम नियरेस्ट क्लासीफायर, फिर हमने इसमें नेबर्स पे किया, देन क्लासीफायर एंड फाइंडिंग द एक्यूरेसी, यहाँ पर हमने उसकी एक्यूरेसी निकाली। तो ये फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है ये क्या करेगा, 60% डेटा को रीड करेगा, उनके बेसिस पे एक इक्वेशन बनाएगा, मॉडल बनाएगा, और फिर वो 40% डेटा को चेक करके एक्यूरेसी निकालेगा। और आफ्टर दैट वी पास दिस रियल डेटा 5532 2435,
और इसको हम उस मॉडल से प्रिडिक्ट करेंगे कि इनका कलर क्या बताता है वो। तो दिस इज द आउटपुट, एक्यूरेसी इज ओवर 90%, और ये 5532 के लिए वर्सी कलर, 2435 को वर्गीनिका बता रहा है। तो data representation, as we know that machine learning is about to create model from data. So for this purpose, computer must understand the data first. तो यहाँ पर डेटा जो है इट इज़ अ टेबल 2D ग्रिड में फॉर्म में रहेगा, रो और कॉलम के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर हम उसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि जो आइरिस डेटा है वो इस तरह रहेगा, जैसे 00 ये सेपल लेंथ, सेपल वेट, पेटल लेंथ, पेटल वेट, एंड दीज आर दी स्पेसिस। So data as what? Feature matrix or target array. So feature matrix may be defined as the table layout where information can be thought of as a 2D matrix. So we can distinguish both by one point that the target array is usually the quantity we want to predict from the data. That is, in statistical terms, it is the dependent variable. मतलब जिसको हम पता करना चाह रहे हैं, जो प्रीवियस जो हम पैरामीटर दे रहे हैं, जैसे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ये क्या होगा, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। दीज आर दी इंडिपेंडेंट बट दिस इज व्हाट डिपेंडेंट। तो हम इसको रन करके प्लॉट भी कर सकते हैं पेयर प्लॉट के थ्रू कि आइरिस का जो डेटा है स्पेसिस और हाइट में उसमें क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज जस्ट इंट्रोड्यूस द साइकिट लर्न, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है और एक आध एग्जाम्पल करना है। लेटर ऑन जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो मशीन लर्निंग की जो भी एल्गोरिथम्स को पहले हम स्टडी करेंगे एज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाट आर द परफॉर्म, और देन उसका इम्प्लीमेंटेशन हम इसी साइकिट लर्न से करेंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट शेप्स, एंड थैंक यू।